and welcome to another session of Money Masterclass. Today we have with us Mr. Chirag Patel from White Oak Capital Partners. He's a CFA and a co-head of product strategy and also associate director. So the topic for today is ideal portfolio for young investors. So welcome Mr. Chirag Patel. Hi, Ali. How are you? I'm good, sir. How are you? I'm fine. Okay. So let's start with the session, and I would like you to please explain about ideal mutual fund portfolio for young investors. So basically, a young investor, if you see, there are two kind of portfolio that we all time carry. One that we invest into equity, mutual fund, and other things like traditional instrument. But we generally forget to calculate about our one of the virtual portfolio. And what is that virtual portfolio? Is your human life value, right? For example, if somebody is at the age of 25, right, he's going to earn money throughout his retirement till his retirement. So all these cash flows are much more stable, right? And it is also a human life value, right? So if you see, if someone is having a government job, for example, at the age of 26, his cash flow is very much stable, future cash flow, right? Okay. So it is more like a debt portfolio, while your the remaining portfolio could be either debt, equity, or anything, which is you invest through your earned money, right? So if you see your future portfolio is if you are having a government job or a semi-government job, it is much more stable. So it is a fixed income portfolio. But if you are into a private job, right, then your portfolio is still a debt-oriented portfolio, but slightly aggressive debt-oriented portfolio. But if you are doing a job in a startup, right, then your portfolio cash flow are not that much stable. So it is more like a aggressive hybrid kind of portfolio, which you can't see, right? But if you are an entrepreneur, then your cash flow is even more aggressive, right? So based on what you are doing at the age of 25 and what kind of cash flow you are going to get over the future through your active income, is your actually a debt allocation or a hybrid allocation. That's why you should put more money into equity through your earned income. For example, if you are earning 50,000 rupees, you can put entire 50,000 rupees into equities, because every year you are going to get this kind of cash flow, right, through your salary, and you can easily average out your portfolio if there is any volatility throughout your journey, right? So a young portfolio person should have an equity portfolio, right? And it may vary from more aggressive to less aggressive based on what kind of education you are having, what kind of profession you are consuming, right? And what kind of cash flow you are going to generate through your uh, uh, active income, or through your work or through your profession. So that is how one should actually create a portfolio. So the golden or the thumb rule is, whatever is your age, right? For example, if your age is 25, you should put 25% amount into fixed income and 75 into equity. So this is what is the thumb rule. So this thumb rule actually has been derived from this human life portfolio and your financial portfolio. Okay. So, sir, what proportion of like income, their monthly income, should a young investor should target to invest? See, what happens is when the youngster start earning at the age of 23, 24, 25, maybe they generally get less salary, but the salary keeps on increasing once they reach like 29, 30, 31, and similarly. So, how should an investor, like a young investor, should allocate their funds in investments like? What proportion should they try to invest, or what how should they increase their investment with the increase in salary? So there are two things to it. One, if he is an independent from his parent, Hmm. right, and if he is still living with his parent and the parents are still, in the second case, he should put entire money into equities, whatever the earning he is having, x his necessity expenses, right? So what is the necessity expenses is, मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए, वो जरूरत है. मुझे Mm-hmm. भूख लगी है, डोमिनोज का पिज्जा चाहिए, वो इच्छा है. तो differentiate between your wish and your need, and then uh, anything that is remaining post your expenses, you should invest into
equities through SIPs. If somebody is still independent, not living with his family, in that case, he has to do some budgeting in terms of whatever expense he is having, right? He first should get an accidental insurance, right? Uh, that is what is the first stage of financial planning, because if somebody will happen to him, right, and his family is dependent on him, it is a big blow to Mhm. the family. And before the age of 40, है ना, अगर मेरा डेथ 40 से पहले होता है ना, तो वो नेचुरल डेथ नहीं होगा, वो एक्सीडेंट से ही होगा. True. नेचुरल डेथ 40 के बाद होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, और एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस बड़े सस्ते होते हैं, Hmm. राइट. तो पहले बारिश में निकलने से पहले छतरी खरीद ले, तो और सस्ता वाला छतरी खरीदो, right? Accidental insurance, because you don't know at what time the rain will fall, right? So that's why that has to be done first, and then whatever left post his necessity expenses, he should put into SIPs. और the right way is, पहले आपको जिंदगी में क्या क्या सपने हैं वो डिसाइड कर लो, लिख लो कहीं पे डायरी में, कि कब मुझे गाड़ी खरीदने है, कब मुझे शादी करनी है, कब मुझे फॉरेन ट्रिप पे जाना है, कब मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स करना है. उसका फ्यूचर एक्सपेंस कैलकुलेट कर लो, और उसके हिसाब से SIPs का अमाउंट प्लान कर लो. आपके आपके मान लो 4-5 गोल्स है दैट यू वांट टू लिव इन योर लाइफ, राइट. तो आपके एक्सपेंस आपको पता चल गया, फ्यूचर एक्सपेंस इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर लो, उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो SIP का अमाउंट आता है, राइट. वो अमाउंट पहले SIP कर लो, उसके बाद जो बचे उसका खर्चा करो. उससे आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ से पिज्जा खरीदना है ना, कि आपको डोमिनोज वाला चाहिए, पिज्जा हट वाला चाहिए, या बाहर कोई रोड साइड रेस्टोरेंट है, वो भी शायद उतना ही टेस्टी बना सकता है, आपको खुद को Mhm. खाना है. इससे क्या होगा, आप आपकी मर्जी का जिंदगी जियोगे फ्यूचर में. अभी या तो मर्जी का खाना खाओ, या तो मर्जी का जीना जियो, राइट. दैट इज द टू चॉइस पीपल आर हैविंग, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव रिटर्न गोल्स, राइट. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. हमको कल क्या करना है वो पता नहीं होता. बोले 15 साल Mhm. पहले का कैसा पता करेंगे, बट आप इतना ही कर दो ना कि 15 साल बाद आपको क्या करना है वो आपको पता है, तो आपकी जिंदगी बड़ी अच्छी जाएगी. आपको पता चलेगा कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है. तब बहुत छोटे सेविंग से बहुत बड़े काम हो जाएंगे. लेट शुरू करोगे तो बहुत बड़ा सेविंग्स करना है पड़ेगा, एक मीडियोकर काम करने के लिए भी, राइट. सो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप 50,000 का 5 साल का SIP शुरू करो, उससे अच्छा 10,000 का 15 साल का SIP शुरू करो, उससे पैसा ज्यादा बनेगा, राइट. So an SIP has to be done, and he has to budget his expenses, and he has to modify his budgeting if needed. अगर उसके सपने साकार नहीं होते तो बजटिंग को उसको वो भी करना चाहिए, रिव्यू भी करना चाहिए. दैट इज व्हाट एन इन्वेस्टर शुड डू विथ हिज सेविंग्स. एंड तो SIP is the main thing that a young investor should start from his very first income. That is what Okay. is Okay. recommended. So, sir, when it comes to young investors, like discipline is a major factor. What happens is young investors think that अभी थोड़ा खर्चा कर लेते हैं क्योंकि अभी अपनी जवानी है, बाद में बुढ़ापे में पैसे भी होंगे तो फिर क्या करेंगे उसका, मतलब ऐसा ही मेंटालिटी रहती है जनरली लोगों में, यंग इन्वेस्टर्स में खास करके. सो व्हाट डू यू सजेस्ट टू दीज काइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स लाइक who don't believe in investing at young age? They'll think like we have to spend right now because we are young. तो बेसिकली एक है ना, मैस्मेलो टेस्ट हुआ था बहुत सालों पहले. यूट्यूब पे उसका वीडियो मिल जाएगा कि बच्चों को ना मैस्मेलो दी जाती थी. इट इज जस्ट लाइक अ चॉकलेट, और उनको बोला जाता था, इट वाज अ टेस्ट ग्रुप. एक रूम में बंद बच्चों को बिठाया जाता था, चेयर पे, टेबल पे चॉकलेट रखी जाती थी मैस्मेलो. उनको Okay. बोला गया अगर आप 10 मिनट तक खुद को रेजिस्ट कर पाए, Mm-hmm. ठीक है, तो आपको दूसरी मिलेगी, Okay. 2 मिलेगी. मगर आप रेजिस्ट नहीं कर पाओगे तो आपने जो खा Mhm. ली वो आपकी है, आपको दूसरी नहीं मिलेगी. तो 80% kids could not resist themselves from that marshmallow, and they ate Mhm. it. मगर 20% बच्चों ने 10 मिनट खुद को कंट्रोल किया, राइट. और because they could control their impulse and emotions, they got 2 marshmallows, राइट. Mhm. तो पहले वाले का शायद दिक्कत क्या था, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. दूसरे वालों ने ग्रेटिफिकेशन डिले किया तो बहुत ज्यादा मिला, राइट. अब 15 साल बाद इस बच्चों का प्रोग्रेस देखा गया, तो जो 20% बच्चों थे जिसने रेजिस्ट किया था,
जिनको 2 मैसमेलो मिली थी वो अपने करियर में बहुत आगे थे, एवरीवेयर इन करियर इन देयर सोशल लाइफ, और जो बाकी 80% है वो मीडियोकर थे। सो ओके। जितना आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को डीलो करोगे उतना आपका सक्सेस और वेल्थ ज्यादा होगा। तो मैं आपको ना लाइफ की 3 प्रॉब्लम बताता हूँ। 25 से आप 35 में हो गए ना, तो आपके पास समय बहुत होगा, ठीक है, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, मगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा, राइट। 35 से 50 में, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आपके पास पैसा भी होगा ठीक ठाक, हम्म। आपके पास हेल्थ भी होगा, मगर आपके पास समय ही नहीं होगा। समय। 50 से ऊपर या 60 के ऊपर आपके पास 2 चीज होगी, आपके पास पैसा शायद बहुत हो सकता है, आपके पास टाइम भी बहुत होगा, मगर आपके हम्म। पास हेल्थ नहीं होगा, घुटनों का दर्द होगा, आप तब माउंटेन, आप रिवर राफ्टिंग नहीं कर पाओगे, बंजी जंपिंग नहीं कर पाओगे, आप फॉरेन ट्रिप नहीं कर पाओगे। सो समवेयर हम्म। ना दिस थिंग्स नीड टू बी बैलेंस आउट। देखो, वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये नहीं कि 8 घंटा काम करो, 8 घंटा फैमिली के साथ रहो। इनिशियल सालों में काम ज्यादा करो, ठीक है, अ, थोड़ा एंजॉयमेंट को सेक्रीफाइस करो। लेटर लाइफ में आप काम कम करो, लाइफ को एंजॉय ज्यादा करो आफ्टर 40-45। सो दिस इज हाउ द वर्क लाइफ हैज टू बी बैलेंस। मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल भी मजे मत करो, और तो कंजूस बनने के लिए नहीं बोल रहा, मगर फ्रूगल बनने के लिए बन रहा हूँ, है ना। 100 रुपए की चीज 50 में मिल सकती हो तो उसका, देर आर वेज एंड मीन्स टू फाइंड इट आउट, राइट, एंड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड फॉर बार्गेन, राइट। अब जैसे कि आप अच्छा ब्रांडेड शर्ट पहनोगे तो 4,000 रुपए में आएगा, वो एक्चुअली शर्ट 1,000 रुपए में ही बनता है। वही कपड़ा खरीद के नजदीक के दर्जी से सिलवाओगे तो 1,000 रुपए में रेडी हो जाएगा, हम्म। राइट। सही। So that is what one need to do, and that is what is required to do. ओके। सो सर, जब यंग इन्वेस्टर्स की बात होती है तो एक चीज, एक इंस्ट्रूमेंट्स जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, वो है क्रिप्टो करेंसीज और एनएफटीज। सो यंग इन्वेस्टर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसीज कंपेयर टू द ओल्डर जनरेशन पीपल। सो लाइक वी हैव सीन मैनी यंग इन्वेस्टर्स पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी इन क्रिप्टो करेंसीज। रिसेंटली थोड़ा क्रिप्टो करेंसी का मार्केट थोड़ा डाउन था तो थोड़ा कम हो गया, बाकी उससे पहले काफी यंग इन्वेस्टर्स जो थे इन सब में, वो कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक इक्विटी डेब्ट में बिलीव कम करते हैं। तो ऐसो के लिए क्या सजेशन होगा आपका? तो बेसिकली मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर आपके साथ कोई नाइंसाफी होती है ना, किसी ने हम्म। आपकी जमीन जमीन हड़प ली हम्म। या किसी ने आपका पैसा चुरा लिया, आप किसके पास जाओगे? पुलिस, गवर्नमेंट। पुलिस के पास जाओगे, आप केस करोगे, है ना, आप हम्म। न्यायालय की तरफ जाओगे, ठीक है, हम्म। तो आप केस कर पाओगे क्योंकि लॉस हम्म। और रूल्स बने हुए हैं। हम्म। क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट अप्रूव्ड बाय आर रेगुलेटर, आरबीआई और सेबी। तो आपके साथ कुछ ऊंच नीच हो गई, आप किसको हम्म। कंप्लेन करोगे? ये मुझे बताइए। जो चीज रेगुलेटेड नहीं है, जो चीज हमारी गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं की है, वहां पे आप इन्वेस्ट करोगे, आपके साथ कुछ भी होगा, यू कांट कंप्लेन इट टू एनीवन, राइट। तो कभी भी अनरेगुलेटेड चीजों में, अगर आप बैंक में जाते हो तो आरबीआई होती है रेगुलेटर, आप म्यूचुअल फंड इक्विटी में आते हो तो सेबी होता है रेगुलेटर, राइट। जो चीज अनरेगुलेटेड है उसमें कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। दूसरा कि जो आपको समझ में नहीं आए, वो कितना भी अच्छा हो, वो कभी इन्वेस्ट नहीं करना। आई थिंक यू लुक्स यंगर देन मी, डू यू नो व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज द Yeah. अंडरलाइंग असेट, who creates it, where it is traded, what are the cash flows it can generate, what is NFT? If you don't have a single answer about it, how can you invest it? Just the price is moving every day. तो ये एक हम्म। तरीके का गैम्बलिंग होता है, ठीक है। तो कसिनो इंडिया में है नहीं, तो लोगों को अब कसिनो खेलना है तो वहां पे खेलते हैं, right? If you don't understand the asset class, how can you invest it? And if it is not regulated, first and foremost thing, whom do you complain if you are encounter with any kind of fraud or any kind of mispractices? So that's why stay away from all those things. मैं ऐसा नहीं बोलता टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, राइट, एक्सेप्ट टेक्नोलॉजी, डू ऑनलाइन इन्वेस्टिंग, राइट, रिसर्च चीजें बहुत सारी अब ऑनलाइन मिल जाती है, पहले आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ने पड़ते, तो यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट मीन दैट यू डू ब्लंडर्स बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, है ना। तो
न्यूक्लियर चेन से, चेन रिएक्शन से एटम बम भी बनते हैं और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी चलता है। तो टेक्नोलॉजी से दोनों चीज हो सकती है। either you can create a disaster for yourself or you can be more productive because of technology, right? तो टेक्नोलॉजी से हमको हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, उससे ऊट पटांग हरकतें नहीं करनी। सो दैट इज व्हाट इज माय से अबाउट crypto and all those NFTs. Okay. Sir, since you talked about technology, I would also ask like there are many fintech platforms and investment application and trading application that are available on mobiles and Android devices and iOS devices. So people what they do is young investors generally they do not spend their time and effort on research and everything, and they just go for it like okay, this app seems nice, this app has good interface, ये दिखने में अच्छा है वगैरह वगैरह, and they invest in it. So how to avoid such kinds of mistake, and how to like identify like which investment app or trading app should be good for us. तो इन्वेस्टमेंट में दो चीज होती है, तीन चीज होती है। सबसे उसका जो बेस होता है वो रिसर्च होती है, राइट? उसके बाद आती है आप ट्रांजेक्शन कैसे करो, और उसके बाद Mhm. आता है सर्विसेज कैसे करो। ठीक है, जस्ट समथिंग इज वेरी इजी टू ट्रांजेक्ट, इट Mhm. डजंट मीन दैट यू डोंट रिक्वायर रिसर्च ऑन इट। राइट, पहले रिसर्च करके आपको फिजिकल फॉर्म का सर्टिफिकेट आते थे, राइट? अब Mhm. आपको रिसर्च करके और बाई करने के लिए ब्रोकर को बोलना पड़ता था। ब्रोकर हमको हाईएस्ट प्राइस पे सेल परचेस करता था, लोएस्ट प्राइस पे सेल करता था, राइट? वेन एवर वी Mhm. आस्क फॉर द प्राइस, और दिन के एंड में ही प्राइस आते थे। उसके बाद टेक्नोलॉजी आई तो आपको टर्मिनल पे दिखने लगा, मगर वो टर्मिनल का भी एक्सेस सबके पास नहीं था। अब मोबाइल फोन में, एंड्रॉइड में सबके पास ऐप है। तो आप देखो, रिसर्च तो अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है, सिर्फ ट्रांजेक्शन सिंपल हुए हैं, right? So Mhm. it does not mean that you can transact easily. It means that you are having all ability to identify the right things into the market, Mhm. right? और दूसरा क्या होता है, because of buying selling is very easy, the investing horizon is shrinking. आपका होराइजन लंबा नहीं होगा तो कभी पैसा नहीं बनेगा। there are old traders in the market and there are bold traders in the market, but there are no old and bold traders in the market. ठीक है, जो बोल्ड है वो नया ही होगा, ठीक है, और जो Mhm. ओल्ड हो चुका है वो बोल्ड रहता ही नहीं है। Okay. देयर आर ओल्ड ट्रेडर्स एंड देयर आर बोल्ड ट्रेडर्स, बट देयर आर नो ओल्ड एंड बोल्ड ट्रेडर्स इन द मार्केट। So this app are people using for trading. It is not for investment. Until and unless if you are using this for long term investment, you are carrying out your proper research and you are using this platform just to transact conveniently. There is no problem. And this fintech problem are also educating, right, people. वो बहुत अच्छे अच्छे मेल बेचते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डेटा बेचते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फाइनेंस की फिलोसॉफी सिखाते हैं, ये सब पढ़िए। सो आई एम नॉट Mhm. अगेंस्ट दिस फिनटेक प्रॉब्लम, बट उसका सही इस्तेमाल करो। दे ऑल्सो प्रोवाइड वेरी सुपर्ब डेटा, और सेटल लोकेशन कैसे करते हैं, वाई इट इज नेसेसरी, उनके मेल्स आते हैं, उनके रिपोर्ट्स आते हैं। तो ऑल दिस थिंग नीड्स टू बी रीड प्रॉपरली एंड देन यू हैव टू टेक द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टिंग। और अगर आपको नहीं समझ में आता, आपके पास समय नहीं है, तो कोई एडवाइजर का आप हेल्प लीजिए। देखो, खुद करने का मतलब कि आपको कुछ पता नहीं, तो आपको अपेंडिक्स का दर्द हुआ और आप खुद ऑपरेशन कर रहे हो। एडवाइस का मतलब क्या है, आपको अपेंडिक्स का दर्द हुआ, आप डॉक्टर के पास जाते हो, राइट? सो दीज आर द टू डिफरेंस बिटवीन दिस टू अप्रोचेस। Okay. सर एक और कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करूंगा यंग इन्वेस्टर्स की, जो कि होती है जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, यंग इन्वेस्टर्स, वो उनको कुछ प्रॉफिट दिखता है किसी किसी स्टॉक में या किसी म्यूचुअल फंड में, एंड दे विड्रॉ फ्रॉम इट, एंड अगर वो ट्रेडिंग करते हैं तो वो होल्ड कर देते हैं। मींस इन्वेस्टर्स आर ट्राइंग टू बिकम ट्रेडर्स एंड ट्रेडर्स आर ट्राइंग टू बिकम इन्वेस्टर्स, सो दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक अमंग young investors and young traders. So how would you explain like how can they, stay away from this kind of mistake? देखो, इससे होता क्या है पता है, जैसे कि आपने 5 स्टॉक खरीदे, गलती से आपने Mm-hmm. 2 अच्छी कंपनी भी खरीद ली, 2 बुरी कंपनी भी खरीद ली, एक एवरेज है। अच्छी Mm-hmm. कंपनी तो अच्छा करेगी और बुरी Mm-hmm. कंपनी बुरा करेगी। तो होता क्या है कि जो कंपनी अच्छी करती है ना, उसको आप बेच देते हो, ठीक Generally. है, जनरली ऐसा होता है। और उससे जो पैसा आया ना, उससे बुरी कंपनी को एवरेज करते हो, ठीक है।
और ये एवरेजिंग की जो प्रक्रिया है ना वो अनंत काल तक चलती है, आप समझो। तो आप क्या करो, आप विराट कोहली को टीम से निकाल रहे हो, राइट, आप रोहित शर्मा को टीम को निकाल रहे हो, एंड XYZ प्लेयर को जो नहीं खेल रहा क्योंकि वो सस्ता है उसको खरीद रहे हो, तो 10 साल बाद आपकी टीम में कचरा ही बेच जाएगा, क्योंकि जो अच्छा था वो तो आपने बेच दिया। और जब जो प्राइस पे आप बेचते हो ना उससे वो ऊपर चला जाता है, फिर वो प्राइस पे कभी आता ही नहीं, आप जिंदगी में वापस उसको नहीं खरीद पाते, राइट। तो कभी कोई भी कंपनी लेने से पहले ना 2-3 सवाल परपेचुअल, या तो स्टॉक या म्यूचुअल फंड, 2-3 सवाल हमको पूछने जाए कि अगर मैं 10 साल का इन्वेस्टमेंट है मेरा होराइजन, तो पहला सवाल पूछो 10 साल बाद ये कंपनी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, 10 साल में इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तीसरा, ये जो प्रॉफिट है वो कोई रिसर्च और डेवलपमेंट एक्सपेंस आप नहीं कर रहे इसलिए आ रहा है क्या, क्योंकि आप R&D में पैसा नहीं डालोगे तो एक दिन आप कोडेक बन जाओगे, राइट। तो रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्चा नहीं कर रहा तो भी आप, और प्रॉफिट आ रहा है तो भी अच्छा नहीं है। और चौथा सवाल, ये आज सस्ता है या महंगा है। अगर ये चारों चार पे टिक मार्क आती है ना तो आपको कंपनी खरीदनी चाहिए। हमको जनरली वो स्टॉक के प्राइस के सिवाय ज्यादातर इंफॉर्मेशन हमारे पास होती नहीं है। तो अगर आपको ये सब चीजें, आप जब ये चार चीज करोगे तो आप कभी भी ट्रेड नहीं करोगे, राइट। सो दैट इज व्हाट वन नीड टू डू। Okay. So, sir, many young investors always try to, reduce their tax liability as soon as they start paying taxes. So, how would you advise them to, efficiently save taxes while, enhancing their wealth? तो एक, पहले तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाइए, न्यू टैक्स रिजाइम में Mm-hmm. मत जाइए, क्योंकि न्यू टैक्स Mm-hmm. रिजाइम में आपको 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता, तो Mm-hmm. इसलिए लोग उसमें चले जाते हैं। फिर उसके पास पैसा ज्यादा आता है तो खर्च ज्यादा कर देते हैं, राइट। Mm-hmm. मगर आप जब ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाओगे ना तो उसमें आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं जिसपे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो आप फिर भी 7 लाख तक टैक्स फ्री कर सकते हो बाई इन्वेस्टिंग इनटू ATC काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो खुद Okay. ATC ले लो, खुद का एक टर्म प्लान ले लो। इससे क्या होगा, आपको 1,50,000 की लिमिट होती है, उतना आपका टैक्स बच जाता है, उतनी इनकम पे आपको टैक्स नहीं लगता। और ये जो पैसा आपने मान लो ELSS स्कीम में डाल दिया थ्रू SIP, so for example on the very first question or second question I have advised you to do an SIP. Why not to do an SIP into a mutual fund ELSS scheme, right? इससे आपका आज का टैक्स बच गया और फ्यूचर का वेल्थ भी बन गया, राइट। So Okay. that's why I think going into an old tax regime where you will get tax benefit is very important. आप एक और फंड में SIP करोगे तो आपका पहले तो ATC कवर हो जाएगा, तो आपको टैक्स कम लगेगा। दूसरा, आपका सेविंग्स हो गया। दूसरा, ये सेविंग ऐसा है एक्चुअली इट इज एन इन्वेस्टमेंट जिसपे आपका वेल्थ बनेगा, राइट। तो आपको 3 फायदे हैं एक साथ करने से। दूसरा, आप NPS करके स्कीम आती है, वहां पे भी आपको 50,000 तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। तीसरा, अगर आप होम लोन लेते हो तो उसके इंटरेस्ट पे 2 लाख तक का इंटरेस्ट जो लगता है उतनी आपकी इनकम टैक्स फ्री हो जाती है, right. So one should use this because at any point in time in your life you will also buy an house, right. तो क्यों ना टैक्स फ्री। और हाउस कभी भी, हाउस लोन कभी भी प्रीपेड नहीं करनी चाहिए, हमेशा Mm-hmm. उसको अगर 15-20 साल के चलाने दो, ठीक है, क्योंकि इससे आपकी लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, राइट। सो these are the few couple of things that investor should do in as far as his tax planning is concerned. Okay. सो सर, मार्केट के डाउन टर्न के टाइम पे एक इन्वेस्टर्स को कैसी अप्रोच लेनी चाहिए? जनरली देखा जाता है कि मार्केट जब सिग्निफिकेंटली गिरता है, जैसे किसी भी रीजन से, ड्यू टू कोरोना और एनीथिंग, लाइक फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, कोई भी इवेंट आ सकता है जिसकी वजह से मार्केट गिरे बहुत ज्यादा। अभी तो काफी ऑल टाइम हाई पर है, तो अभी काफी इन्वेस्टर्स मतलब इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन फ्यूचर में अगर कोई सिग्निफिकेंट गिरावट आती है मार्केट में, तो फिर उस टाइम पे कैसे अप्रोच करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? तो बेसिकली देखिए, जब मार्केट, अब तक 20 बार मार्केट फॉल हुआ है, 10% से बड़े करेक्शन आए हैं 2001 से। एक भी ऐसा करेक्शन नहीं है जो रिकवर नहीं हुआ और उसके बाद नया हाई बनता है। हर 2.5 साल में मार्केट ने ऑन एन एवरेज मार्केट ने नया हाई बनाया है। उसका मतलब है जब मार्केट गिरना चाहिए तो क्या करना चाहिए, राइट। आपको इन्वेस्ट करना चाहिए,
right? So whenever the market fall by more than 10%, you should invest more aggressively. That is the golden principle, right? दुनिया खत्म, मार्केट करेक्ट होने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती, राइट? पहली बात। और दुनिया खत्म हो जाएगी तो कोई टेंशन नहीं है, राइट? तो फिर पैसों को देख के क्या करने का? तो मार्केट करेक्ट होने से दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी और हिंदुस्तान तो बिल्कुल भी नहीं खत्म होगा, एंड इट विल बाउंस बैक अगेन। एंड ये बाउंस बैक ना स्प्रिंग की तरह होता है वापस, एंड वी हैव सीन इन मेनी टाइम। सो व्हेनेवर द मार्केट करेक्ट, सब लोग आपको मना करेंगे, न्यूज़पेपर से लेके, फ्रेंड से लेके, कलीग से लेके, टीवी वाले से लेके, सब कोई। तो जब सब कोई ना बोलता है ना, वो इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट टाइम होता है, और तब वो डिसीजन लेने वाले आप अकेले ही होते हो, कोई आपके साथ नहीं होता। डू नॉट वांट डू नॉट यू नो गो फॉर एनी काइंड ऑफ कंफर्मेशन। आप कंफर्मेशन लेने जाओगे, मार्केट करेगा, सब आपको मना कर देंगे, और हाइंडसाइट में पता चलेगा कि यार डाल दिया होता तो अच्छा होता, राइट? एंड इट इज कॉल्ड एन इडियोसिंक्रेटिक बिहेवियर। पूरी दुनिया जो कर रही है, आप उसको उल्टा कर रहे हो, है ना? तो ये कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। बिकॉज when everyone is not investing and you are investing, you feel like an idiot, and nobody would like to be an idiot. And that's why this behavior is called idiosyncratic behavior. So you have to be act like an idiot if you really want to make money into the market, and you want to make money alpha higher than the average people makes, right? So for that you need to be an idiot, you don't need to be a smart investor. ओके। सो सर, जैसा कि आपने बताया कि मार्केट जब करेक्ट हो रहा होता है, जब गिर रहा होता है, तो वो एक बहुत अच्छा टाइम होता है इन्वेस्ट करने का। तो क्या इसका ये मतलब है कि अगर जैसे मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पर है, काफी ऊंचाई पर है, तो ये एक बुरा समय है इन्वेस्ट करने का, और शुड वी अवॉइड इन्वेस्टिंग राइट नाउ? तो बेसिकली हर 2.5 साल में मार्केट हाई बनता है। अगर मान लो 2 साल के बाद मार्केट 80,000 होना है, तो आज का हाई बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, ओके। राइट? तो ठीक है, मार्केट का वैल्यू नहीं देखना चाहिए, उसका वैल्यूएशन देखना चाहिए, राइट? अगर 15% मार्केट बढ़ता है और 15% से अर्निंग बढ़ती है, तो मार्केट सेम वैल्यूएशन, सेम लेवल पे, भले मार्केट 15% ऊपर है, मगर अर्निंग 10% से बढ़ती है और मार्केट 20% से बढ़ता है, उसको बोलते हैं ओवर वैल्यूड मार्केट। तब आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि थोड़ा रीबैलेंस आपके पोर्टफोलियो को करना चाहिए, कि अर्निंग से ज्यादा मार्केट बढ़ रहा है, राइट? देखो 3 साल में अगर आप रात को सोते हो और सुबह आपका बाजू मोटा हो जाता है, ठीक है, तो उसको ग्रोथ नहीं बोलते, उसको स्वेलिंग बोलते हैं, है ना? तो कभी कभी मार्केट में भी ऐसी स्वेलिंग आ जाती है, राइट? अदरवाइज इफ अर्निंग इज ग्रोइंग, the market will grow, but if without earning growth, if the market is growing, that is called swelling. Okay. So, lastly, sir, what advice would you give to our young investors who are like planning to invest or how to build their portfolio? So I am very selfish person. तो मैं यंग लोगों को बोलता हूँ, आप बहुत खर्चा कीजिए, आप खरीदिए, ठीक है, ताकि मेरे पास जो गाड़ी के स्टॉक है उसका प्रॉफिट बढ़े। आप कपड़े खरीदिए बहुत सारे, पैसा खर्च करके, ताकि ये कंपनी, कपड़े बनाने वाली कंपनी, प्रॉफिट करे, जो मेरे पोर्टफोलियो में है। आप पिज्जा खाइए, आप KFC में खाना खाइए जाइए, आप PVR में मूवीज देखिए, राइट? आप अच्छे अच्छे कपड़े खरीदिए, ताकि सारी कंपनी का प्रॉफिट बढ़े, इससे मुझे फायदा होगा। आप अगर इस ऑर्नामेंट्स खरीदिए, गोल्डन ऑर्नामेंट्स, आप नाइका के कॉस्मेटिक खरीदिए, इससे कंपनी को प्रॉफिट होगा। आप जोमेटो से खूब फूड ऑर्डर करिए और बहुत सारा फैट इकट्ठा कीजिए, ताकि आप बीमार पड़ो और आपको दवा भी लेनी पड़े, तो सारी कंपनी को फायदा हो और मुझे प्रॉफिट हो। और ये सब करने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पैसा कमाना पड़ेगा। तो आप काम करोगे और मैं मजे करूंगा, राइट? सो इफ यू वर्क हार्ड एंड यू स्पेंड लॉट ऑफ मनी, है ना, टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी यू हैव टू वर्क हार्ड। So do lot of hard work, do spend lot of money, so that I don't have to work. I will grow my wealth by those portfolios, right? So that is what is my gentle advice to all the young investors. That was the best sarcastic advice that I have ever received for young investors. Thank you for a very, very informative and very insightful session, Mr. Chirag Patel. I hope you will have more sessions like this with us.
I would request all our viewers to subscribe to our YouTube channel and download our Bullsmart app so that you never miss any interesting live like this. Hope you have a nice day, Mr. Chirag. Thanks, Ali. Thanks.